Karachi Karsas. He was Governor Rotary International District 3270, Pakistan and Afghanistan in 2005 and 6. Also, he remained Pakistan's first ever Regional Rotary Foundation coordinator of Rotary International Zone 6B for 3 years. He also represented Rotary International presidents at district conferences in Australia, Brunei, Canada, USA, India, Philippines. In 1998, he initiated Rotary Shelter Project for more than 100 unprivileged families in Kutch district of Balochistan. He was co-chairman of Rotary International Committee for Afghan Refugee from 2001 to 2004. He is founder of Rotary Humanitarian Trust Pakistan and chair of Rotary Leadership Institute. He is none of other, the one and only, our honorable guest, past district governor, Rotarian Mohammad Faiz Kidwai. Welcome, sir. Thank you. Thank you. How are you, Hassan? Alhamdulillah, Alhamdulillah, I'm fine, sir. Sir, as it's a wonderful opportunity for Rotractors to know more about Rotract from a senior Rotractor and also Rotarian, who successfully conducted several projects which were internationally recognized by Rotary International. So, sir, before moving forward to a session, if you allow me to ask a few questions which are highly requested from Rotractors. So, if you allow me. Sure, please go ahead. Sir, as being a Rotractor, my first question is that you joined Rotary from Rotract. So how was your experience in Rotract? What are the major differences between 1980s to nowadays? Because it's a 40 years difference. Yes, Hassan, thank you. First of all, for inviting me, and I would like to offer my greetings to all my friends, Rotractors and Rotarian friends. And this certainly is an opportunity where we can interact, and these online meetings initiated by you, I'm sure will benefit not just the Rotractors but Rotarians as well. Before moving on to your question, I think it is important for us to realize the fact that friends world, I believe, has changed forever. And all of us, including you, are going to be part of this historic change. And we have to be ready, we have to be prepared. I personally feel that our habits are going to change, our lifestyle will change, our living conditions will change, our human values are perhaps, and when I'm talking of change, inshallah, this change is going to be for the betterment of all. Uh, Gap between haves and have-nots, I can see now that happening, because if this thing has happened, this certainly has some agenda by the Almighty Allah. And I have a strong belief in that, because the situation in which we have gone through for last many years, last many decades, is certainly not very satisfying as a human being, as someone who is part of the global activities which are going on socially, economically, otherwise even. So I personally see a great change, positive change coming all through what is happening around. लेकिन उससे पहले जो है वो हमें एक टफ टाइम पीरियड जो है वो देखना होगा. एंड अगेन मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल जो टाइम पीरियड है, we should all be ready, we should all be prepared to go through this time. It is going to be a difficult time, but after this, I can certainly see a very positive happenings for all of us. और तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि quicker the better we adopt this situation, the current situation and situation beyond. बिकॉज ये एक फोर्स्ड चेंज आ रहा है हमारी लाइफस्टाइल्स में. अभी एट प्रेजेंट, हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम अभी हुआ है, महीना 1.5 महीने का, वी कैन सी ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम what tremendous change has happened. At least I can feel better, I can feel more healthier in this situation, where I can spend more time with my family, with my parents, with my wife, with my children. And this certainly is a change. And along with that, all other activities
are not maybe with the same pace, but yet we are continuing. And beyond this, the biggest activities which all of us are sharing is the Rotary activity. And I always say that whenever we come across such challenges, it is actually an opportunity for us. And here, this COVID-19 is a tremendous opportunity, I think, which has been given to us. When I say tremendous opportunity, I mean in terms of doing. All of us martial arts are blessed. जो हम रोटेरियंस हैं, हम रोट्रैक्टर्स हैं, अल्लाह ताला ने इनमें सलाहियत दी है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, इंसानियत के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए, कम्युनिटीज़ के लिए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और हमें उसको यकीनन अवेल करना चाहिए। तो यही मैं कहूँगा कि हमारे इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आई थिंक वी शुड बी वेरी carefully and in a very intelligent manner keep moving ahead. देखिए मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि कुदरत का क्या खेल है कि 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया बंद हो गई और वो लोग जो बहुत अपने आप को चैंपियन समझते थे, हम सब चैंपियन समझते थे, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खामी आ गई थी रिसेंट टाइम्स में, ख़ास तौर पे कि हमने हम के बजाय मैं कहना शुरू कर दिया। समझते तो मैं हूँ तो सब कुछ दुनिया भी है, मैं नहीं हूँ तो दुनिया नहीं है। हर लेवल पे, चाहे वो हम टॉप लेवल पे देख लें लीडरशिप्स की ग्लोबल लेवल पे, या हम ग्रास रूट लेवल पे जो हम लोग जो रोल प्ले करते हैं। तो इन सारी सिचुएशन को मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा झटका है उसके लिए, बल्कि अगर मैं कहूँ इट्स अ स्लैप ऑन आवर फेस, ऑन आवर ईगोज स्पेशली बाय द ऑलमाइटी गॉड कि ये तुम लोग हो, ये तुम्हारी हकीकत है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हुए मेरे ख्याल में हमें एक नई ज़िंदगी, नई डायरेक्शन की तरफ जाना है। और मैं यूथ को ख़ास तौर पे हमारी जो यंगस्टर्स बैठे हैं उनको बताऊँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये मत समझिएगा कि आप लोग जो है ना वो के लिए कुछ कोई आप कन्फाइन होके रह जाएंगे। नो, द वर्ल्ड इज़ ओपनिंग फॉर यू। और वो लोग जिनके अंदर टैलेंट है जो सब में है, जिनके अंदर सोचने की सलाहियत है जो कि सब में है, उनके लिए एक बहुत बड़ी दुनिया खुल गई है। एंड नाउ यू कैन रियली गेन अ लॉट। So with this brief sharing of thoughts, I'll come to your question कि रोटरी और रोट्रैक के हवाले से ऐसा जरा फिर से रिपीट कर देंगे आप क्वेश्चन? हेलो। यस हाँ, सर। मेरी आवाज आ रही थी आपको? सर मैं क्वेश्चन, जी सर बिल्कुल आवाज आ रही थी, एक्चुअली वो जी म्यूट पे था मैं। जी 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 सर, मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस व्हिच यू फील कि इस 40 साल में आप रोड ट्रैक के अंदर दिखते हैं। आपने 1980s के अंदर रोड ट्रैक ज्वाइन किया था एंड इट्स नाउ बीन 40 इयर्स टू रोड ट्रैक, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं रोड ट्रैक के अंदर? देखिए, जो डिफरेंस मैं देखता हूँ रोड ट्रैक में वो, या इवन रोटरी में, कि आज से 40 साल पहले जो रोटरी थी, आज जो रोटरी है, आज से 40 साल पहले जो रोट्रैक्ट मूवमेंट चल रही थी, रोट्रैक्टर्स थे, आज जो रोट्रैक्टर्स हैं, वो वही डिफरेंस है जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंस आया है कि वी हैव सर्टेनली डिटीरियोरेटेड। द सोसाइटी व्हिच वाज देयर 40 इयर्स अगो वाज सर्टेनली अ डिफरेंट सोसाइटी। और मैं इस वजह से डिफरेंट कहूँगा कि बिकॉज आई बीइंग अ रोट्रैक्टर, आई ऑलवेज से that a lot of time in me has been invested by my seniors, by my Rotarians, by my Rotractor colleagues who were there. And we really used to move as one team, as either whether it was Rotract or Rotary. And the only purpose for the Rotarians at that time was that we have to groom these Rotractors for the future of this world. And the objective of us, the Rotractors, was that we seek maximum benefit out of our senior Rotarians, out of our fellow Rotractors. हमारे साथ, I was member of Rotary Club of Karachi, और हमारे जो भी साथी थे Rotary Club of Karachi में alone, वो इतने हाई क्वालिटी इंडिविजुअल से कि जब हम बैठते थे, आई थिंक मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। इसमें हमारे जो जो लीडिंग रोल प्ले किया जिसमें वो पास्ट लेट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तारिक अब्दुल्ला वाला है,
फिर उसके बाद किशोर अल्लाहवाला, अब्बास सईद, first past DRR was there along with Murtaza Manvi. There's a long list, I can tell you. ये वो लोग थे जिन्होंने कि they were in this fast track work missing. I would not blame the Rotractors for that. I would blame the Rotarians for that, because Rotractors are supposed to receive. They're at the receiving end. And I think we Rotarians have not played our role, what we should have been doing. But I'm happy. I'm happy that for last 2 years, I've seen that there is a very positive growth. And I must give credit to these Rotrac district leaders, स्पेशली जो हमारे लीडर्स पिछले 3 साल में रहे हैं, और उसके दे हैव सर्टेनली, व्हेन आई से लीडर्स, ऑफ कोर्स द डीआरआरस हैड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट उनके साथ साथ जो पूरी टीम थी, यानी इट वाज अ टीम वर्क. आई कैन सी तला देयर माशाल्लाह, जो इन्होंने जिस तरह से लीड किया डिस्ट्रिक्ट को. अनम हमारी थी, उन्होंने लीड किया. राणा असद ने जो लीड किया, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप. And this is what inspired me as well to spend my time. क्यों मैं हमेशा ही कहता हूँ कि if I am something here, if I have been able to do something in Rotrac, in Rotary, it is because of the time invested in me by my senior leaders, by my Rotary leaders, by my Rotrac friends. And this, I believe, is now my duty to pass it on to my youngsters, my new generation leadership, which we are having today. Yes, sir. Yes, sir. Sir, my next question from you. वैसे तो मतलब बहुत अच्छा ये सर इंट्रोडक्शन था रोट्रैक्टर्स के लिए. अगर मतलब वो इस बात को रियलाइज करें कि रोट्रैक मूवमेंट कितना इंक्रीज हुई है, कितना मतलब उसको आगे बढ़ाया गया है रोटेरियंस की तरफ से भी. और हमारे जो डीआरआर रहे हैं, राना असद हो गए, या हमारे डीआरआर हैं, पीडीआरआर हैं, तला मुश्ताक हैं, या असदुल्ला हैं, या अब जो आने वाले हमारे डीआरआर इलेक्ट हैं इकरा सजाद, तो वी आर वेरी मच होपफुल कि रोट्रैक मूवमेंट और ज्यादा आगे बढ़ेगी. So my next question is about your past project, a successful project which you have initiated in 1998, which was Rotary Shelter Home. So sir, how you came up with that idea and how you managed that funding? देखिए, जैसे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने दोस्तों को कि रोटरी और रोट्रैक मूवमेंट में जब आप आते हैं ना, रोट्रैक मूवमेंट में एक तो रोट्रैक्टर्स का जो वाहिद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपने सामने जिनको रखना चाहिए, या रोट्रैक्टर्स को जो एक विजन अपना बनाना चाहिए और जो उनका मिशन होना चाहिए, वो ये कि आपको एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है ऑर्गेनाइजेशन की, और आपको एक अच्छा इंसान बनना है और आपको एक अच्छा लीडर बनना है. You have to groom yourself as a thorough professional, through which you can not only be able to serve your respective fields, but you should be able to serve the humanity, which is its ultimate aim. तो अगर आप अपने एक अच्छे इंसान होंगे ना, तो there is no reason why you cannot be successful in your respective professions as well. तो सबसे पहले तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपने आप को तैयार करना है इन चीज़ों के लिए. और जब आप रोट्रैक्ट और रोटरी की बात करते हैं, तो आई ऑलवेज से स्काई इज द लिमिट. ऑलवेज ड्रीम बिग, ऑलवेज थिंक बिग. And this is what I have learned from my seniors, and this is what I have been alhamdulillah practicing. And I also guide to all my friends, Rotrac and Rotary friends, कि रोटरी में आने के बाद अगर आप ये सोचते हो ना, अच्छा फिर मैं अगेन मैं कहूँगा कि रोट्रैक्टर्स को तो अभी फोकस रहना है कि आपने अपने आप को एक अच्छा इंसान की तरफ बनाना है, एक प्रोफेशनल, एक थॉरो प्रोफेशनल बनाना है. वी रियली डू नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप कोई बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स करें, बहुत ज़्यादा उसको करें, क्योंकि आप बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे उस वक्त जब आप तैयार हो जाएंगे. जैसे जो है, अगर मैं आज कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करने के काबिल हूँ, इस वजह से कि मुझे तैयार किया गया, मेरे सीनियर्स ने, मेरे कोलीग्स ने मुझे तैयार किया. रोटरी में आने के बाद और रोट्रैक, अब रोट्रैक
को भी वैसे अपॉर्चुनिटीज तो हैं। तो इफ जो आपके यंग प्रोफेशनल्स हैं जो फ्री एंड दे हैव टाइम, उनके लिए भी अब माशाल्लाह बिग इन रोटरी। तो हमेशा सोचें बड़े प्रोजेक्ट्स, हमेशा सोचें, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे ना कि मैं जाऊं और मैं स्कूल में जाके 4 किताबें दे दूं, और मैं जाऊं मैं किसी मोहल्ले में किसी इलाके में जाके 4 सिलाई की मशीनें दे दूं, और या इस किस्म की ये हैंड पंप लगा दूं मैं, ये रोटरी नहीं है। रोटरी इज मच बियॉन्ड दैट। एज आई सेड, रोटरी इज स्काई इज द लिमिट। तो जब 1998 में एक सैलाब आया था तुर्बत में, तो मैं चूँकि माय कंपनी हैज़ बीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज इन ग्वादर सिंस 1992। तो ग्वादर तुर्बत उस सारे इलाकों से हमारी अच्छी नेटवर्किंग हो गई थी, अच्छी दोस्तियाँ हो गई थी वहाँ पे, और उस चीज़ को सामने वो चूँकि उस वजह से फिर एक उनसे एक रिश्ता बिल्डअप हो गया था। तो जब ये सैलाब आया वहाँ पे, और जिसमें तकरीबन कई हज़ार लोग जो हैं वो बेचारे जो है दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और हज़ारों लोगों ने घर, क्योंकि जितने ये रिमोट एरियाज हैं बलूचिस्तान के, रिमोट क्या बल्कि इवन जो सिटीज़ हैं, तुर्बत इज़ एक्चुअली अ सिटी, इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट टाउन ऑफ बलूचिस्तान आफ्टर ग्वादर। तो वहाँ पर भी जो आउटस्कर्ट्स में घर जितने बने थे उस ज़माने में, वो कच्चे घर होते थे। जब ये सैलाब फ्लैश फ्लड आया तो सारे घर उनके तकरीबन तबाह हो गए। तो अब मेरे जहन में फ़ौरन ये आया, अच्छा उस ज़माने में आई वाज प्रेसिडेंट इलेक्ट इन 1998-99। तो मेरे जहन में आया क्यों ना हम मैचिंग ग्रांट प्रोजेक्ट करें। दैट वाज द टाइम, उससे पहले हमारे क्लब ने कोई मैचिंग ग्रांट प्रोजेक्ट नहीं किया था। 98-99 में वी डिड फर्स्ट मैचिंग ग्रांट प्रोजेक्ट ऑफ आवर क्लब, और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। तो चूंकि हम कर चुके थे एक प्रोजेक्ट, तो मुझे ये आइडिया था कि वी हैव समथिंग वेयर दिस मैचिंग इज आल्सो डन। A shelter for the underprivileged families was a project of a past Rotary International president जो बड़ा promote कर रहे थे उसको। So I came across this experience, तो मैंने कहा चलो let us to make some shelters here। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था रोटरी के हवाले से कि हम कुछ ग्रांट्स करेंगे, खासकर हमारे क्लब में तो बिल्कुल उसकी उम्मीद थी। पाकिस्तान में भी बहुत कम क्लब्स थे जो मैचिंग ग्रांट्स करते थे। So then अच्छा हमारे क्लब में लेट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तारिक अख्तरवाला was the district governor elect at that time, and he was going to USA for his training as the incoming governor. तो उनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा तारिक I want to do this project and can I give you some applications for matching grants। तो उन्होंने कहा हाँ बेस्ट, व्हाई नॉट, यू मेक द एप्लीकेशन, कम टू माय ऑफिस एंड देन विल फाइनलाइज इट। तो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई 8 से 10 घर की, और मैंने अपने हिसाब से बहुत बड़ा काम कर लिया था कि 8 से 10 घर। पहली दफ़ा मैंने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, मैंने कहा मैं ये रोटरी के मैचिंग ग्रांट बनाऊंगा। मैचिंग ग्रांट भी ऐसी बनाई कि हमें मेरे ख्याल में $200 देने थे, बाकी जो है we were hoping that we'll get matching partners and funding from the Rotary Foundation। जब वो मैं एप्लीकेशन लेकर के गया अपने दोस्त के पास जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट थे उस ज़माने में, रूम तारिक अख्तरवाला, उन्होंने एप्लीकेशन देखी उन्होंने, और देख करके उन्होंने मुझे वापस कर दिया, कहने लगे फैज़ ये नहीं हो सकता, एंड ही जस्ट पुट दैट एप्लीकेशन असाइड। आई वाज फॉर अ वाइल सरप्राइज्ड कि इन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन लाए मेरे पास, और उसके बाद एप्लीकेशन देख करके उसके बाद साइड में रख दी। तो कहने लगे फैज़ आई थिंक यू हैव नॉट येट रियलाइज द वर्थ ऑफ रोटरी। The worth of Rotary is not that you just do 8 to 10 shelters. It is much beyond that. मैंने कहा अच्छा फिर मैं क्या करूँ, कहने बड़ी एप्लीकेशन है। Then he suggested we make 4 applications of 25 units each, and I'll try to find partners for that. I made application of 25 units each, and when he came back from his training, he said, "Faiz, I've got the partner. All your applications have been approved, and all your partners, I found partners for all these projects." And we then ended up making more than 120 shelters in that region alone. So this is how my first actually you can say real understanding
कि रोटरी है क्या। यस, रोटरी जो है वो 1 2 4 10 घर बनाने का नाम नहीं है, वो सैकड़ों घर बनाने का नाम है। और फिर वही एक चीज़ थी जो आपको मालूम है, अभी रिसेंटली हमने ठट्टा में जो है 160 घरों का एक विलेज बनाया है, रोटरी जो बोट, इस पे उसी की कंटिन्यूएशन है। एंड देयर इज फ्रॉम वेयर ऑनवर्ड्स दिस अगेन आई मस्ट से दिस वाज लेटर ऑन। अब अगर हम देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने काम किए डिस्ट्रिक्ट ने हमारे पाकिस्तान में जो हमने काम किए, दिस itself is now a peanut project। ठीक है, इससे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सबने मिलके, और बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एवरीबॉडी हैज टू रियलाइज कि इन रोटरी स्काई इज द लिमिट। यू जस्ट थिंक ऑफ एनी प्रोजेक्ट, लेकिन कमिटमेंट हो, टाइम दें, दिमाग इस्तेमाल करें और लगे रहें। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया एक दफ़ा और वही अप्रूव हो गया। नो, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू be committed totally, dedicated to your work, to your project, and then let the almighty pave the way for you। ये हकीकत है कि सोचते हम हैं लेकिन रास्ता तो उसे निकालना है ना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रास्ता वो क्यों नहीं निकालेगा ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं सब, आप तो इंसानियत के लिए कर रहे हैं ना। और ऊपर वाले भी ये कहा है कि तुम आगे बढ़ो, बाकी जो है वो रास्ता मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तो दिस इज व्हाट think, decide and move ahead, and I can do miracles। अभी हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन और बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं तो सब लोग। और ये अब जो कोविड-19 की अपॉर्चुनिटी आई है, it's tremendous opportunity, avail it। This is an opportunity where Rotary and Rotrack movement can take a new leap, and I can see a new Rotary, a new Rotrack coming in years ahead, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर जाएंगे इंशाल्लाह। आज हमारे पास इंशाल्लाह। अगर 5,000 रोटेरियंस हैं अगर पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 years वी शुड बी एटलीस्ट 20,000 रोटेरियंस। आज हमारे पास 1,500 रोट्रैक्टर्स हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ रोट्रैक्टर्स को तो रोटेरियंस के नंबर से ज्यादा होना चाहिए। व्हाई नॉट? हमारे और ये रोटरी वर्ल्ड में, एंड आई डिस्कस दिस विद माय इंटरनेशनल लीडर्स एज वेल, कि क्या बात है कि रोटरी की मेंबरशिप जो है वो 12 साढ़े 12 लाख है और रोट्रैक्टर्स की इतनी कम मेंबरशिप है। वजह ये है कि शायद हमने उसको फोकस नहीं किया, हमने उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए। पाकिस्तान में 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या 20,000 रोटेरियंस और 20,000 प्लस रोट्रैक्टर्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बट we have to have that vision, we have to have a clear direction for ourselves, and we have to lead all these figure works by our own selves। वंडरफुल सर, बिल्कुल। मतलब एक इम्पोर्टेंट ये एक कोविड-19 जो है अपॉर्चुनिटी बन के आया, और मतलब अभी अगर देखा जाए तो रोटेरियंस एंड रोट्रैक्टर्स सब लोग साथ मिलके इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं सर सबसे पहले था अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मैं तो मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी डेजिग्नेटेड हैं सर तहजीब कादमी, उनको वेलकम करता हूं, और पीडीआरआर असदुल्ला हुनैन को भी वेलकम करता हूं। सर मैं सबसे पहले एक सवाल आया है अभी हमारे पास रोट्रैक्टर सुनहरी शेख की तरफ से कि रोटेरियंस एक्सपेक्ट expensive support from rotractors, due to which some rotractors are unable to join, and this lead to misconceptions. What's the best way to balance the relations between Planet Club and other Rotary clubs? देखिए ये बिल्कुल गलत है कि रोट्रैक्टर से हम एक्सपेक्ट करें कि वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना? एब्सोल्युटली आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दिस। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जो रोट्रैक्टर्स हैं वो प्रोजेक्ट्स लें जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कम हो और जिसके अंदर सपोर्ट और इन काइंड मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। और अब देखें पेरेंट क्लब तो ठीक है अपनी जगह है, बाज़ जगह पेरेंट क्लब सपोर्ट करते हैं, बाज़ जगह पेरेंट्स क्लब नहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो नई एक रोट्रैक की फिलॉसफी आई है ना, वो ये है कि ठीक है पेरेंट क्लब अगर आपको नहीं भी सपोर्ट कर रहे यू कैन मूव अहेड। You are not connected with the entire world of Rotary. You are not connected with the entire district of Rotary, with all the clubs in Pakistan, with all the clubs in the entire world. और
आपको जो इस वक्त सबसे बड़ा, आप यू आर वेरी लकी इंडिविजुअल्स कि इस वक्त जो रोटरी इंटरनेशनल की लीडरशिप है ना, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, करंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्रेसिडेंट नॉमिनी, and I'm sure all incoming leaders at the Rotary International levels, they all are giving top priority to Rotractors. और बल्कि मुझे ये पता चला है कि शायद हो गया है या होने वाला है कि Rotractors can also do global grant projects, in time to come. अगर अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा, I'm sure इस साल जरूर इसकी अप्रूवल हो जाएगी. तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज वाइड ओपन है. अगर आपका पेरेंट क्लब नहीं सपोर्ट कर रहा है, आप दूसरी तरफ आप चाहें, आप ये हमारी सोशल मीडिया को यूज करें पॉजिटिवली, और उसमें आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा. अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो एक जर्मन डेलीगेशन आया था हमारा रोटरी जो कोर्ट पे, जिन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, वो आए, दे विजिटेड रोटरी जो कोर्ट, दे विजिटेड बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड मैनी प्रोजेक्ट्स. अब जैसे ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ, सम मेंबर्स गॉट कनेक्टेड टू देम. जो लोग मिले थे उनसे, हैदराबाद भी टीम आई थी, आपको याद होगा, और उन्होंने उनसे जब डायरेक्ट कनेक्शन किया तो दे स्टार्टेड सेंडिंग सपोर्ट टू देम डायरेक्टली. ठट्टा में मुझे मालूम है इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, लाहौर में आई नो कि इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है हमारे जर्मन यूटिलिटेरियंस ने. तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट टू देम. और लेकिन अगेन आई वुड से कि आप शुरू करें इन काइंड सपोर्ट से. आप इमीडिएटली डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर मेजर फाइनेंशियल सपोर्ट. इन काइंड सपोर्ट जो कैसे आएगी, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग. अच्छा, जितने हमारी जो इंटरनेशनल लीडरशिप है ना, या जो रोटेरियंस है स्पेशली वेस्ट में या डेवलप कंट्रीज में, वो ये देखते हैं कि अगर आपको उन्होंने छोटी सी सपोर्ट भी दी है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया है, और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि रिपोर्टिंग कैसे की आपने. सो यू शुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग system. You should you should show them that the funds which they have sent are well spent, are spent in accordance to financial plans, and it has been well audited as well. ये चीजें अगर आप अपनी अभी से अगर प्रैक्टिस बना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी. तो yes I agree कि रोट्रैक्टर्स को खुद, स्पेशली if they are in the field of education or in their early professional lives, they should not be spending directly for these projects, but they should be getting support from their respective clubs, from other clubs in the district, in Pakistan, and international club. And for that, you have to reach to them, and you have to reach them with an authentic plan. And so कोई भी एक्टिविटी आप करें ना, इसमें सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट जरूर रखिएगा. कि आप ये सोचें कि 2-3-4 साल का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये नहीं सोचें बस अभी करना है मैंने. नहीं, आप आगे 2-3-4 साल का प्लान बनाएंगे. तो हो सकता है आपने आज जो एक्टिविटी शुरू की, हो सकता है कि आप उसको नहीं कर पाए, लेकिन आने वाली लीडरशिप आपके उस एफर्ट्स को जो आपने इनिशिएट किया है उससे जरूर बेनिफिट उठाएंगे. सर, एक अभी क्वेश्चन आया है हमारे पास. एक इंटरनेशनल रोट्रैक्टर ने हमें सेशन के लिए ज्वाइन किया है फ्रॉम रोट्रैक्ट क्लब ऑफ कलकत्ता. सर, उनका एक सवाल है कि आई वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर अवर रोट्रैक्ट क्लब एंड हैंडल विल चेंज बाय ईयर. इज दिस पॉसिबल? Yes, it is certainly possible. The only thing is you have to see what the local law says. Whether the local law allows a club to open a bank account, or not. But then obviously you have to follow the club bylaws, the club constitutions, and your board need to approve the signatories of the bank account. There has to be a treasurer, president, vice president, secretary. Usually these 4 office bearers are signatories to a bank account, unless the club allows any other individual who is doing a project that yes, that individual can also become part of the signatory team. तो आपको अपने लोकल लॉज देखने होंगे और कि इंडिया में क्या लॉज है. पाकिस्तान में लॉज आर वेरी टफ, और बट इंडिया में आई थिंक रोटरी जो है दैट इज मोस्ट डेवलप्ड, बल्कि इट इज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन रोटरी इंडिया. तो मेरे ख्याल में इंडिया में आपको जो है वो हिंदुस्तान में अकाउंट खोलना
प्रॉब्ली आसान होएगा. तो जो आपकी लीडरशिप है उनसे आप डिस्कस करें, एंड आई थिंक दे कैन गाइड यू बेटर. थैंक यू सर. सर अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि रोटरी इंटरनेशनल या रोटरी पाकिस्तान अगर देखा जाए तो उसमें जब भी लिटरेसी का नाम आता है तो उस नाम के साथ रोटेरियन फैज किदवाई, पीडीजी फैज किदवाई का नाम जरूर आता है. तो सर आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि what kind of literacy programs Rotary Pakistan Literacy Mission is working on? देखिए, लिटरेसी जो प्रोग्राम हमारा है या रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन, मैं आपको बताऊं कि इन 2012 व्हेन इंडिया बिकेम पोलियो फ्री, तो कल्याण बनर्जी वाज द रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एंड शेखर मेहता, माय फ्रेंड शेखर मेहता वाज द रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर. उन्होंने एक समिट जो है वो रखी नेपाल में of all the Rotarians and Rotary clubs and Rotary districts of South Asia, especially SAARC countries. Let us discuss what should be our next target now, since polio is almost coming to an end. तो वहाँ पे हमारे सारे क्लब्स का यूनानिमस जो डिसीजन था वो ये कि our next target should be literacy and especially for South Asia. ये अब हम बात कर रहे थे रीजनल बेसिस पे. इट इज नॉट एन इंटरनेशनल प्रोग्राम, क्योंकि हर कंट्री की, हर रीजन की अपनी अपनी नीड्स थी. तो वहाँ से फिर रोटरी की साउथ एशिया लीडरशिप ने डिसाइड किया, ओके वी विल नॉट वर्क फॉर लिटरेसी. और आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट nominee Shekhar Mehta for initiating this program, for making the Rotary South Asia Literacy Mission, and then subsequently organizing literacy missions in each country. Rotary India Literacy Mission को उन्होंने खुद हेड किया और मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि आई शुड हेड द रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन. और ये देखिए, एक विजन होता है लीडरशिप का. जिस लेवल पे वो थे, he could have, और जिस लेवल पे इंडिया माशाल्लाह है in terms of membership, in terms of its size and all, वो खाली इंडिया पे भी फोकस कर सकते थे. पर उन्होंने कहा नहीं, I want to, when we are taking it as a mission, then I want to see the whole of South Asia's total literate in years to come. तो पाकिस्तान में उन्होंने जो है मुझे इनवाइट किया और फिर भी डेलिब्रेटेड कि ये प्रोग्राम होना क्या चाहिए. अगेन इसमें जो मेजर रोल था वो शेखर मेहता साहब का था. ये ही केम अप विद द आइडिया कि let us have our mission should be total literacy and quality education. और क्यों? क्योंकि total literacy, that we need everybody to be literate, and quality education because we need quality education at all levels. खाली literacy के जी वो साइन कर दे, नाम पढ़ ले अपना, अखबार पढ़ ले, no, we have quality education. और इस मिशन को लेकर के वो आगे चले, हम सब उनकी टीम का हिस्सा बने. और उसके बाद फिर इसी अब ये डिस्कशन हुई कि ज़ाहिर हर एरिया का, हर रीजन की अपनी नीड्स है. नीड असेसमेंट क्या है. फिर एक प्रोग्राम बिल्डअप हुआ, एक प्रोग्राम इवॉल्व किया शेखर मेहता साहब ने, जिसको नाम दिया टीच. नाउ व्हाट इज दैट टीच? टीच में टी स्टैंड्स फॉर टीचर सपोर्ट, ई स्टैंड्स फॉर ई लर्निंग, ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट लिटरेसी, सी स्टैंड्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड H stands for happy schools. तो हमने ये कहा कि ये अगर टीच का कॉन्सेप्ट हर स्कूल में जो है हम इंट्रोड्यूस करा दें और इम्प्लीमेंट करा दें, तो हम we can work not just for total literacy but we can work for quality education as well. ये सारे जो 5 एरियाज थे, ये सारे वो एरियाज हैं where you need to get involved and you need to involve all those who are attached to this. टीचर्स सपोर्ट में सबसे पहले हमें टीचर्स को एड्रेस करना है, उनकी ग्रूमिंग करनी है, उनकी प्रॉब्लम देखनी है, उनको हमने असेस करना है कि इश्यूज क्या है उनके साथ. और सारे टीचर्स खराब नहीं होते. कुछ टीचर्स शायद हो सकता है वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हो उस पोजीशन के लिए, बट बाकी टीचर्स जो है दे जस्ट नीड अ ग्रूमिंग, दे जस्ट नीड अ गाइडेंस, दे नीड एनकरेजमेंट, रिकॉग्निशन. तो थोड़ी सी मोटिवेशन से उनका जो एक
एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ जाता है। फिर ई लर्निंग, आज का ज़माना ई लर्निंग का के ई लर्निंग के थ्रू, बल्कि फ्यूचर में भी हम देख रहे हैं कि अब ई लर्निंग ने बहुत मेजर रोल प्ले करना है। एडल्ट लिटरेसी के, ठीक है हम लिटरेसी की बात करते हैं, ज़ाहिर छोटे बच्चों की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज चिल्ड्रन जो किसी कुछ वजूहात की बिना के ऊपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको उनको साथ साथ में अपने अपने घर की जो माशी हालात हैं घर के, उसको भी देखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी देखना है, तो वो स्कूल में नहीं जा सकते। उनके लिए वी हैव टू कम अप विद सम अल्टरनेट प्रोग्राम्स। तो हमने एडल्ट चिल्ड्रन के एडल्ट लिटरेसी के हवाले से फोकस किया, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हमने फोकस किया, चाइल्ड डेवलपमेंट कि ठीक है पढ़ना लिखना तो एक जगह अपनी जगह है, बट व्हाट अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उसको हमने उस पर भी सोचना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, वो और चीजें हो जिससे बच्चों की ग्रोथ के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, हेल्दी हेल्दी लिविंग के हवाले से। तो उन चीज़ों को हम फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के उसमें लेकर के आए। एंड देन फाइनली हैप्पी स्कूल, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज कि every schools, whether it is government schools or a private school, should be a healthy schools, जहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट हो खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, चाहे वो फर्नीचर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइब्रेरीज हो, लेबोरेटरीज हो, एक ऐसा हो कि जो बच्चे जाएं वो हंसते खेलते हुए जाएं और हंसते खेलते हुए वापस आए। दिस इज द होल फिलॉसफी ऑफ दिस टीच प्रोग्राम। अब इसमें आया कि जब पाकिस्तान के हवाले से बात आई तो ये हुआ कि हम क्या करें। ठीक है, ये प्रोग्राम भी आ गया, सब चीज़ें बन गई, कमिटीज भी बन गई, व्हाट शुड बी आवर टारगेट। कुछ लोगों ने कहा कि रोटरी अपने स्कूल्स बना लें, कुछ लोगों ने कहा कि ऑलरेडी जो मुख्तलिफ NGOs जैसे सिटीजन फाउंडेशन है, जैसे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्कूल चला रहे हैं, रोटरी उनको सपोर्ट कर दें। तो फिर मैंने कहा नहीं, देखिए अगेन आप बात कर रहे हैं एक मिशन की, आप बात कर रहे हैं टोटल लिटरेसी क्वालिटी एजुकेशन, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि हम अपने 10 15 20 100 स्कूल बना लें, हम जो है वो सिटीजन फाउंडेशन या दूसरी फाउंडेशंस को या NGOs को सपोर्ट कर दें कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं सब, और उनके साथ हम मिल जाए। व्हाई नॉट वी हैव आवर ओन कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम्स। और सबसे बड़ी चीज कि अगर हमें टोटल लिटरेसी और क्वालिटी एजुकेशन पे इसको टारगेट करना है, तो दैट इज ओनली वन एरिया, एंड दैट इज रीचिंग द ग्रास रूट लेवल एंड रीचिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स। उसके अलावा कोई हमारे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। हमें सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पहुंचना है और हमें वहाँ पर इंटरवेंशंस करने हैं, और वहाँ पे जो भी उनकी ज़रूरियात है उनको हमें केटर फॉर करना है। यस, इट्स अ बिग चैलेंज। ठीक है, लोगों ने कहा जी सरकारी स्कूलों में तो वहाँ तो जाने का फ़ायदा नहीं, वहाँ तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं, और वहाँ तो जो है कोई हमें हमारी बात ही नहीं सुनेगा, और तो सब करप्ट हैं, और वहाँ तो टीचर्स ऐसे हैं। तो बात ये है, अच्छा हमने फिर विजिट किया स्कूल्स को, और हमने देखा कि इसलिए ऐसी बात नहीं है। हमें अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होगा, और हमें चैलेंजेस फेस करना है। देखिए अगर ये चैलेंजेस नहीं होते, अगर गवर्नमेंट स्कूल बड़ा अच्छा चल रहा होता, अगर सारे गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे चल रहे होते, अगर सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स बड़े हाई क्वालिटी के होते और बड़े डेडिकेटेड होते और स्टूडेंट्स भी अपना माहौल भी अच्छा होता, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत जो पड़ी है वो इसीलिए पड़ी, आज हम जो बात करते हैं कि हम इतना पीछे रह गए हैं कि इवन नेपाल इज मूविंग अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। तो क्यों? क्योंकि हमने उस लेवल पे तवज्जो नहीं दी। हमने तवज्जो कहाँ दी? प्राइवेट स्कूल्स बना ले। हमने तवज्जो कहाँ दी? NGOs अपने स्कूल्स बनाने। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, एंड आई मस्ट टेल यू कि बिकॉज ऑफ आवर RPLM programs, we for the first time initiated this public private partnership in Sindh. और निसार खोरो साहब was the education minister, जिनको इंडिया भी लेकर के गए थे in one of the summits there, उनको हमने कन्विंस किया कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, क्योंकि
हम इन दी पास देखते रहे हैं कि ये अडॉप्ट स्कूल प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, बट अडॉप्ट स्कूल प्रोग्राम में फिर भी देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ओनरशिप ऑफ दीज स्कूल्स। तो हमने कहा कि लेट अस डू दिस द पब्लिक गेट इनटू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और सिंध गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस जिन्होंने 2013 में या 12 में ही या 13 में ऑर्डिनेंस ले आए थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर। So then subsequently other provinces have also followed. So that is the idea कि अब आप करें partnerships। अब हम जाएं और हम schools में government के साथ सारे provinces में हम जाएं, उनसे partnerships करें। Again, as I said, challenges जरूर होंगे, but challenges कुछ अगर हम Rotarians नहीं, with all our contacts, with all our resources, with all our strengths, अगर हम अपनी resources को नहीं आगे बढ़ा सकेंगे, नहीं utilize कर सकेंगे, और हम अगर चैलेंजेस को नहीं फेस कर सकेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे, तो कौन करेगा फिर? जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये तो किसी के पास नहीं है स्ट्रेंथ। तो ये हम इसको करेंगे और इंशाल्लाह हम सब मिल करके हम ये प्रूव करेंगे, यस वी हैव द स्ट्रेंथ, वी आर कमिटेड टू इट, एंड इंशाल्लाह वी विल मेक पाकिस्तान टोटल literate, and we'll have quality education at the grassroots level in each government schools inshallah in years to come. एक मैं और बात बताऊं, रिसोर्सेज की जब बात आती है, ये जब प्रोग्राम शुरू किया तो इसके साथ हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया कि हम बुक कलेक्शन ड्राइव करें। और मैंने टारगेट रखा अपने रोटेरियंस के लिए पूरे पाकिस्तान में कि जी हम 10 लाख किताबें जमा करेंगे। एवरीबडी सेड कि बुक्स 10 लाख किताबें कैसे जमा होंगी, पॉसिबल नहीं है, 10 लाख किताबें कहाँ से आएंगी। और दूसरा मैंने कहा कि लेट अस डेवलप रीडिंग हैबिट्स स्पेशली अमंगस्ट आवर यूथ, अमंगस्ट आवर यंगस्टर्स, एंड क्रिएट लाइब्रेरीज इन स्कूल्स, लाइब्रेरीज इन पार्क्स, लाइब्रेरीज इन कम्युनिटीज। कि वो जो पढ़ने की सलाहियतें ख़त्म होगी ना, लेट अस बिल्ड अप दैट हैबिट अगेन। तो सबने कहा कि पॉसिबल नहीं हो सकता कि 10 लाख किताबें जमा हो जाए, बट मुझे बिलीव था किस पे? अपने पे नहीं, रोटरी पे। कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत से मैंने नहीं सोचा था, ये मेरी ज़ाती हैसियत से मेरी सोच नहीं जा सकती है इतने आगे तक, बट चूंकि I was wearing a cap of Rotary, I was wearing the jersey of Rotary, तो मुझे ये पता है कि इस ब्रांड के साथ I can think of anything big. तो मैंने 10 लाख किताबों का टारगेट रखा, और I can tell you कि till now we have been able to collect more than 700,000 books all over Pakistan. और एक और चीज़ बताऊँ मैं, in 700,000 या 750,000 में more than 650,000 books have been donated, have been provided by our friends from USA and UK, Rotary friends. और this is what I say कि ये आपकी strength है, ये आपकी resources हैं। हम जब resources की बात करते हैं तो पाकिस्तान खाली नहीं है, वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड इज बिहाइंड यू। अब ये आपकी सलाहियत है कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। और आजकल ये जो हमारे पास गैजेट्स हैं, फेसबुक, दूसरे सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़, ट्विटर्स, ये वो सारे तो आपको एक सेकंड में कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो हम कोशिशें कर रहे हैं कोविड के हवाले से, तो तहजीब आपको बता सकेंगे कि हमने ऑलरेडी माशाल्लाह एक तो रोटरी फाउंडेशन से ग्रांट ली, डायरेक्ट ग्रांट ली। अब 2 ग्लोबल ग्रांट्स हमारी तकरीबन फाइनल हो गई है, एक तो सबमिट भी हो चुकी है। तो ये एक सेकंड, मतलब थोड़ी सी देर ही नहीं लगी इसके अंदर टू फाइंड अ पार्टनर। तो ये आपको हमें ये सोचना है, इस लिटरेसी को हम एज अ मिशन लेके चलें, रिसोर्सेज की फिक्र नहीं करें, रिसोर्सेज बहुत हैं, करने वाले बने। अब मैंने किताबों की बात की, मेरे पास अभी भी कंटेनर मौजूद है किताबों के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूट करें। सुनहरी ने जो सवाल किया, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट में चाहिए ही नहीं आपको, आप किताबें लें और किताबें डिस्ट्रीब्यूट करें। हैदराबाद में तो एक बहुत बड़ा सेंटर है अब्दुल्ला मॉल में, जहाँ पर के जो है रेगुलरली बुक्स आपको मिलेंगी, कंटेनर्स आते हैं, वहाँ पर भी रेगुलरली जाते हैं। आप गेट होल्ड ऑफ दोज बुक्स, और उसके बाद आप जाएं स्कूलों
और स्कूल में जाकर के आप लाइब्रेरीज बिल्डअप करें। ऑलरेडी बहुत काम करवा दें माशाल्लाह, ये लिटरेसी वाले के हवाले से, ख़ास तौर पे लाइब्रेरीज के बनाने के हवाले से। और मैं क्रेडिट दूंगा जो हमारे मेरे RPLM के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इकबाल कुरैशी साहब से, माशाल्लाह ही इज डूइंग ग्रेट जॉब इन दिस एरिया। So माशाल्लाह your visions and आपकी जो होप्स हैं, जो मतलब आप जिस तरह से इंस्पायर करते हैं लोगों को, माशाल्लाह सर ये बहुत मतलब बूस्ट अप करते हैं हमें सर। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वुड लाइक टू वेलकम PDRR Jaleel Malik, Rotary District 3272. Thank you sir for joining us. Before coming to the next question, मेरा एक छोटा सवाल है जो हमारे एक रोट्रैक्टर हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि मतलब मैंने when I told him about you and your works, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था. Still he is not in the Rotract but he wants to join Rotract. उनका एक सवाल था कि he wants to start a sustainable project for transgenders in Hyderabad. He want कि मतलब वो चाहता है कि वो एक एजुकेशन का पूरा तरीक़ेकार उनके पास है. वो चाहते हैं कि वो हैदराबाद के अंदर एक अपनी बेसिस पे स्टार्ट करें जिसमें वो ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करें और उनको कुछ ऐसे वर्कशॉप्स करवाएं जो उनकी जॉब के लिए सपोर्टिव हों, जो उनको जॉब लेने में हेल्प करें. तो ही जस्ट वांटेड टू से कि मतलब क्या रोटरी इसमें सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, व्हाई नॉट. और बल्कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, कि दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग मेंबर्स ऑफ रोटरी क्लब्स. और कराची में हमारा एक रोटरी क्लब है जिसमें दे आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ दैट क्लब. कुछ आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप बताइएगा, वी कैन सर्टेनली गाइड यू एंड वेयर पॉसिबल वी कैन हेल्प यू आउट एज़ वेल. Inshallah. So coming to our next question, sir, as you discussed about a lot of things जो हमारे मतलब बूस्ट अप करती है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा इंस्पिरेशन. मतलब आप जैसे रोटेरियंस हैं, पास्ट रोटेक्टर्स हैं. So sir, I want to ask that what is your vision towards Rotract and Rotary in Pakistan? Your vision. देखिए, मेरा विजन तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि I can see things happening in Pakistan, in Rotary Pakistan. और उसकी मेरे ख्याल में हर चीज़ का एक टाइम होता है. हमारा पाकिस्तान हैज़ बीन फॉलिंग बिहाइंड. हमारे यहाँ जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी पिछले चंद सालों में, वो समहाउ नहीं हो पाई. पर अब मैं देख रहा हूँ कि एंड व्हेन आई एम सेइंग कि पाकिस्तान, दैट मीन्स बोथ डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट जस्ट 3271. क्योंकि जब हम बात करते हैं एक रोटरी इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हम जब बाहर जाते हैं तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो हमें रोटरी पाकिस्तान अगर ग्रो करेगा तो दोनों डिस्ट्रिक्ट ग्रो करेंगे, तो रोटरी पाकिस्तान में ग्रो करेगा. खाली एक डिस्ट्रिक्ट ग्रो करे, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं करे, we have to come up with a coordinated and an integrated plans. और मुझे बड़ी खुशी है कि जो आने वाली लीडरशिप्स है, करेंट लीडरशिप और आगे आने वाली लीडरशिप्स और इवन इमीडिएट पास्ट लीडरशिप्स, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की they have a good working relationship. They are working together and we are coming up. बल्कि आज सुबह ही मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी सैफ के साथ काफ़ी डिटेल एक डिस्कशन हुआ. It's let us come up with a strategic development plan for the entire country. और अब मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी प्लान बनाएंगे तो रोटरी का प्लान, उसमें रोड ट्रैक जो है वो हर सूरत उसके अंदर एक बहुत मेजर उनका किरदार होएगा और उनका बहुत मेजर इसके रोल होएगा और हिस्सा होएगा इसमें. तो हम जब बात कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान बनाए वो रोटरी के लिए, एंड रोट्रैक बीइंग द पार्टनर ऑफ रोटरी विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह इन दैट एज वेल. तो ये अगर हम इस प्लान को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मेरा विजन जो है वो ये है कि हम अगले पाँच सालों में we should be reaching at least 20,000 Rotarians and if not 20,000 Rotractors, at least 10,000 Rotractors. बल्कि मैं हमेशा Rotractors का ये कहता हूँ कि हमने Rotract मूवमेंट को बढ़ाया ही नहीं आगे. अगर रोटरी 20,000 रोटेरियंस हो सकते हैं, या आज अगर 5,000 रोटेरियंस हैं,
हर रोटेरियंस अगर सिर्फ एक रोड ट्रैक का मेंबर ले आए, एक रोड ट्रैक्टर बना दें, तो हमारे 5,000 तो रोड ट्रैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इसमें हमें एक बहुत ही एक इंटीग्रेटेड प्लान और कंसोलिडेटेड एफर्ट हमें चाहिए होंगी, जो हमें मिलके करना है और जो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मेरा विजन ये है कि वी हैव टू टेक रोटरी टू न्यू हाइट्स, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, क्वालिटी मेंबरशिप्स। एक चीज मैं बताऊं, when we call ourselves a Rotractors and a Rotarians, that means you are quality human beings. If you are not quality human being, yet you are a member of Rotaries or a Rotrac, then you are simply a member of a Rotary Club or a Rotrac Club. You are not a Rotractor. You are not a Rotarian. आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मेंबर जो आप बनते हैं रोटरी का क्लब के या रोट्रैक क्लब के, उस मेंबरशिप मेंबर बनने के बाद से जो आपका सफर है कि आप रोट्रैक्टर बने, आप रोटेरियन बने, वो एक आपको उसका एक प्रोसेस से गुजरना होता है। और जिस दिन आप रोट्रैक्टर्स और रोटेरियन जेन्युइन रोट्रैक्टर बन गए, उस दिन आपके लिए स्काई इज द लिमिट। तो मेरा विजन बड़ा क्लियर है, इंशाल्लाह हमें रोटरी को ग्रो करना है, और मेंबरशिप के साथ साथ वी हैव टू वर्क फॉर सर्विस प्रोजेक्ट्स, वी हैव टू वर्क फॉर प्रोजेक्ट्स यूथ के हवाले से, यंग जनरेशन के हवाले से। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर देम, वी हैव टू कम अप with sustainable programs for the development of youth as well. फिर फीमेल्स के हवाले से, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड बी शेयरिंग इक्वल नंबर्स इन रोटरीज, तो women इन रोटरी, फीमेल्स इन रोटरीज, उनका बहुत मेजर रोल मैं देख रहा हूँ आगे। और जब ये सब हम इकट्ठा हो जाएंगे, न्यू जनरेशन, फीमेल्स, ऑल अदर मेल रोटेरियंस, सीनियर रोटेरियंस combined together, we can create miracles. Nobody can stop us. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करें, भूल जाएं। मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किए, वो भी आगे चल के मुझे ये समझ आए कि वो भी प्रोजेक्ट्स बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स थे जो आपने किए थे, इससे बड़े प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट माय टारगेट इज इंशाल्लाह, एंड आई एम श्योर दैट टुगेदर वी कैन अचीव आवर टारगेट्स इंशाल्लाह। सर, अभी हमारे पास एक सवाल आया है। हमारे एक बहुत अच्छे रोट्रैक्टर हैं फ्रॉम रोट्रैक क्लब ऑफ कराची कोलाची, रोट्रैक्टर फाइक। उन्होंने से सवाल पूछा है कि रोटरी पीस फेलोशिप के बारे में सवाल है कि हाउ रोट्रैक्टर्स कैन पार्टिसिपेट एंड टू whom they should contact in our district for endorsement process. इंडोर्समेंट के लिए आई थिंक द गवर्नर हैज टू इंडोर्स इट, बट आप ऑनलाइन जाके यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, और उसमें रोटरी पीस फेलोशिप के हवाले से, और उसमें जो एक स्पॉन्सरिंग क्लब होता है, स्पॉन्सरिंग क्लब आप यू कैन गेट कोलाची रहे या कोई भी क्लब आप कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट हैज टू साइन दी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, और फिर गवर्नर उसको साइन करता है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट, मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे आइडियल जो इस वक्त पर्सन हु कैन बी बेनिफिशियल इज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी तहजीब काजमी। आप तहजीब से जो है कोऑर्डिनेट कर लें, ही कैन गाइड यू, वरना मुझे आप कॉल करिएगा, आई कैन फर्दर गाइड यू इन दिस के। बट अब देखें ना, ये कितनी अच्छी बात की इन्होंने कि रोटरी पीस स्कॉलरशिप फेलोशिप्स, इतना बड़ा प्रोग्राम है, 2001 से शुरू हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। हमारे यहाँ ये सिचुएशन है, हम लोग उसके लिए सिलेक्शन तो बात की बात है, हम लोग उस पर अप्लाई नहीं करते। हमारे क्लब्स हर साल पाकिस्तान से 3272, तो इसमें वैसे फिर भी बहुत बेहतर है माशाल्लाह, उनके यहाँ एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, और वहाँ से काफ़ी एप्लीकेशन जाती हैं, बट फिर भी उतनी नहीं जाती जितनी जाने चाहिए। मेरे हिसाब से हर क्लब 3271, 3272 मिला के वी आर मोर देन 260 क्लब्स, 270 क्लब्स, कम से कम 270 एप्लीकेशन हो जाएं। और जब 270 एप्लीकेशन जाएंगी तो यकीनन 1, 2, 3, 4 सिलेक्शंस उसमें ज़रूर होंगी। तो ये हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी होंगी रोटरी के अंदर, सारे रोटेरियंस को, रोट्रैक्टर्स को। वी हैव टू गेट इनटू द हैबिट्स of taking advantage of all what is available around us, and not just by doing it ourselves, but by taking it to others as well. हम समझते हैं कि एक कम्युनिटी में हमारा, जिस तरह मैं बताऊं कि मुझे ये पता है कि खैरपुर से
2 या 3 दफ़ा माशाल्लाह ग्लोबल लेवल स्केल के ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन जाती है तो पूरी दुनिया से 70 लोग नॉमिनेट होते हैं एंड दे आर सेंट टू 7 लीडिंग universities of the world of their choice, of the choice of the person who is selected. खैरपुर से मेरे ख्याल में 2 या 3 दफ़ा नॉमिनेट हो सके हैं, एबटाबाद से हो चुके हैं, लाहौर से हो चुके हैं, लेकिन जितनी तादाद में जाने चाहिए उतनी तादाद में जो है हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है. तो it's good that this subject has been discussed and I'm sure all of you will not at least make an effort. खुद नहीं अप्लाई करें तो किसी को पकड़ के अप्लाई जरूर कराएं इसमें. इंशाल्लाह सर. एंड इस सवाल से मतलब बहुत लोगों के लिए ये ऑप्शन ओपन हो गया है कि मतलब वो इस किस्म की चीज के लिए लाजमन अप्लाई करें. आई वुड लाइक टू वेलकम PDRR Rana Kashif from District 3272. Sir, now we are going to take our second question, which is, sir, please, I don't know who sent this question is from Protractor Shahbaz Chandija, I think so. He asked, sir, can please tell us about joint venture with Sindh government or government of Pakistan and Rotary Pakistan Literacy Mission. जी, रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन में हमने somehow हमारे 3271 डिस्ट्रिक्ट है ये तो इसने तो पिछले 3-4 साल में काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, बट 3272 में वी आर बिट स्लो. और मैंने अगेन जो करंट लीडरशिप है और आने वाली लीडरशिप्स हैं वहाँ की, उनसे मैंने बात की है कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि जो हमारे अगले साल के यानी 21-22 के जो रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं शेखर मेहता, उनका तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी दी फोकस एरिया और प्रायोरिटी भी होगा आफ्टर पोलियो ऑफ कोर्स. तो इसलिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ. तो आई एम होपफुल कि हम इसको दोबारा बहुत ही एग्रेसिव तरीके से हम लेके चलेंगे. एंड वी ऑलरेडी हैव यस अरेंजमेंट विद सिंध गवर्नमेंट, with SCF and with Government of Sindh Education Departments, with the Directorates of Education in Karachi, Nawab Shah and all. But we want to take a very high jump from here. सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में बहुत कुछ करना है हमने, KPK के अंदर, आज़ाद कश्मीर में. We have to come up, very aggressively. और मैं चाहूँगा अपने सारे दोस्तों को कि आप लोग प्लीज़ आगे आइए, अपने आप लोग इंटरेस्ट भेजें, गेट इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम. अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज जो तहजीब साहब ने की है, DGN तहजीब ने, ये कोविड-19 के हवाले से सिंध के अंदर कितनी सक्सेसफुल रही. It's, he got everybody involved, Rotarians, Rotractors, at the district levels. हर आदमी इन्वॉल्व हो गया. हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के अंडर जो कमेटी बनी है उसमें हमारे रोटेरियंस उसके मेंबर हैं. खाली मेंबर नहीं है, और खाली वो एक्टिविटी जो हम रोटरी की तरफ से कर रहे हैं उसमें नहीं इन्वॉल्व है, वो जो डिस्ट्रिक्ट भी एक्टिविटी कर रहा है उसके अंदर भी इन्वॉल्व है. एंड दैट इज द आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू पार्टनरशिप्स, कि हम तो अपने रिसोर्सेज लगाएं, लेकिन जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत से स्कूल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उसको मैनेज करना है, उसमें थोड़ा सा हमने टाइम देना है उन स्कूल्स के अंदर, और उसमें हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना है, टीचर्स को मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स के अंदर जो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमने जनरेट करनी है. ये चीज़ें हम थोड़े से टाइम देंगे तो देयर इज नो रीज़न कि हम एक मैसिव प्रोग्राम को न सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकें बल्कि अपने मिशन को हम पाए तकमील तक पहुँचा सकें इंशाल्लाह. एंड सर, मतलब अभी रोट्रैक्टर्स डिस्ट्रिक्ट 3271 एंड 3272 के भी बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिव तरीके से आपके सेशन में क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि मतलब इतनी ज़्यादा सवालात तो हम नहीं ले सकते, लेकिन वी आर टेकिंग फ्यू क्वेश्चन. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा है रोट्रैक्टर मखदूम मुदस्सिर, जो प्रेसिडेंट हैं रोट्रैक्ट क्लब ऑफ सक्खर के. सर ने सवाल पूछा है कि इफ रोटेरियंस डज नॉट रिस्पॉन्स रोट्रैक्टर्स, व्हाट वुड Protractors can do? As I said before also, अच्छा ये जो मजेदार बात बताऊं कि ये जो आपको शिकायत है ना, ये हमें भी अपने ज़माने में शिकायत होती थी. जली मलिक साहब बैठे हुए सामने, इनको भी शिकायत होती थी कि हमारे जो रोटरी क्लब वाले हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते. लेकिन क्यों जली साहब, सही कह रहा हूँ ना? सर ऐसे ही है.
ये तो रोटी रोटेट का असल में फैज भाई ये सास और बहू का रिश्ता है। तो ये हर जमाने में है, ये हर दौर में है। वो सास है जो कभी बहू थी और उसके वो अब साथ यही सास, हुआ। लेकिन वो सास अब वो बहू अब सास बन चुकी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर वो अगले वाली बहू के साथ यही होना है ना। ये असल में रोटरी रोटरेट को तो मैं सास बहू का रिश्ता कहता हूँ हमेशा। हाँ, जी आप लेकिन बताइए प्लीज। जी जी, बट ऑल सेड एंड डन, देखिए एज आई सेड अगेन एंड अगेन, हमारे पास प्रोग्राम्स है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, आपके पास कनेक्टिविटी है। अगर आपका रोटरी क्लब आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। आप एक तो सबसे पहले रोटरी और रोड ट्रैक का जो ब्रांड है ना, इट हैज अ ग्रेट वैल्यू। आज से 40 साल पहले रोड ट्रैक या रोटरी को अगर आप उसका बैज लगा के किसी सरकारी दफ्तर में जाते थे या डीसी के पास जाते थे या कहीं सरकारी ऑफिस में जाते थे या प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, तो उनको नहीं पता होता था ये रोटरी है क्या। आज कम से कम इतना चेंज जरूर आया है, वो कहते हैं हाँ ये रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ये तो पोलियो में इतना बड़ा काम किया है उन्होंने, जिससे ये बहुत ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन। आप तो असल इंसान तो आप लोग हैं। ये चेंज आया है, तो आप उसको यूटिलाइज करें। अगर रोटरी क्लब नहीं आपको हेल्प कर रहा है, आप अपनी कम्युनिटी में जाएं। आज मैं आपको बताऊं कि आप करने वाले बने, आप इरादा करें कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, आप बाहर निकलें, आप अपनी कम्युनिटी में जाएं, लोगों से बात करें। आप दूसरे क्लब्स जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पाकिस्तान में क्लब्स हैं रोटरी क्लब्स, उनको आप अप्रोच करें। आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप रोटरी क्लब्स, रोड ट्रैक क्लब्स भी, जो सबसे अच्छी चीज़ आपके पास है ऑनलाइन कनेक्टिविटी, वो रोड ट्रैक क्लब्स की भी है। आप अपने आप को कनेक्ट करें। रोटरी और रोड ट्रैक दोनों के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको सही मानों में रोटरी और रोड ट्रैक की फेलोशिप एंजॉय करनी है ना, then get connected to the internationality of Rotary. That means beyond the borders. अभी हमारी एक दोस्त वहाँ से कलकत्ता से थी, आई एम श्योर, और आप लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं दूसरी कंट्रीज के भी लोग आते हैं। दिस इज व्हाट रियल रोटरी एंड रियल रोड प्रैक्टिस। तो अपने आप को, आप अगर आपका होम जो क्लब है, स्पॉन्सरिंग क्लब, वो नहीं सपोर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बल्कि उनसे कहें सर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं और हम इंटरनेशनल लेवल पे पार्टनर तलाश करते हैं, आपको भी हम पार्टनर देंगे तलाश करके, आप उनका हिस्सा बन जाए। इंशाल्लाह सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोट्रैक्टर ग्यास शेख कि how will power and energy towards leadership. देखिए अगेन वही, टू रीच देम, आप उन तक पहुँचे, आप नॉक देयर डोर्स। जो सबसे अच्छी चीज़ रोट्रैक्टर्स की है कि जो भी हमारे रोटेरियंस हैं और जितने रोटेरियंस हैं, ईच वन ऑफ देम माशाल्लाह आर लीडर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है, you go to them, reach them, talk to them, discuss with them your ideas, and there is every reason that they are going to support. But don't expect कि आप बैठे रहेंगे और वो आपके पास आएंगे, आपको उनके पास जाना होगा। और ये एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगेन जब हम रोट्रैक्टर्स थे, जलील साहब और हम लोग सब, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कराची के, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, और हमको यकीन नहीं आता था कि उनके दफ्तर में हम बैठे हुए, उनकी टेबल के सामने हम बैठे हुए और उनसे डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या मैटर डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो है ये जो अपना जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है रोटरी एंड रोड ट्रैक, वो हमने उस पर कैसे मिल करके काम करना है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और जब आप बात करते हैं ना, उनके पास जब जाते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो रीच देम एंड गेट होल्ड ऑफ देम, बल्कि दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू मीट यू। सर हमारे एक रोट्रैक्टर हैं फ्रॉम हैदराबाद, रोट्रैक्ट क्लब ऑफ हैदराबाद गैलेक्सी के हैं, रोट्रैक्टर फौजिया कीरी। उन्होंने सवाल पूछा था रिलेटेड टू द रोट्रैक्टर फ्रॉम इंटरनेशनल रोट्रैक्टर। सर उनका सवाल ये था कि हमारे यहाँ भी मतलब ये अकाउंट खोलने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं
और उन्हें ये ट्राई भी किया है, तो पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह इस चीज को मतलब कोशिश करें कि यहाँ पे अकाउंट्स खुल सकें? देखिए पाकिस्तान में एज आई सेड इंडिया में तो रोटरी रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रोटरी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमारी एफर्ट्स इसमें जारी हैं। और इसमें इकबाल कुरैशी साहब जो हमारे फुल एजेंट हैं और ट्रस्टी जो हैं हमारे अजीज़ मेमन, सब हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब ये एज अ रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी रजिस्टर्ड। जब एक दफ़ा वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी, फिर रोटरी क्लब्स को और रोड ट्रैक क्लब्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अकाउंट खुलवाना जो है वो आसान हो जाएगा। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम हालांकि वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप अपने रोटरी और रोड ट्रैक क्लब को चाहें तो एक लोकल एनजीओ के तौर पे आप रजिस्टर करवा लें सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट के तहत, और फिर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन उसमें ज़ाहिर है उनकी कुछ वो है रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको फुलफिल करनी होगी कि जब आप अगर फिर रजिस्टर होएगी, अकाउंट्स होएगा, तो आपको एनुअली उसके बैंक अकाउंट रहेगा तो एनुअली आपको उसके अकाउंट सबमिट करने होंगे जो भी रजिस्ट्रिंग बॉडी है उनको, और आपको एक प्रॉपर तरीके से फिर लेकर के चलना होगा। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम श्योर सून वी आर गोइंग टू गेट अ सोल्यूशन। सर हमारे एक रोट्रैक्टर हैं, रोट्रैक्ट क्लब ऑफ हैदराबाद इंस्पायर के, जो हमारे हमारे अपना क्लब है उसके रोट्रैक्टर हैं, रोट्रैक्टर वजाहत जफर। उनका सर एक सवाल है कि ही सर कि एज यू मेंशन अबाउट अ सेंटर इन हैदराबाद, तो सर कैन यू मेंशन कि वो सेंटर कहाँ पे है जहाँ से मतलब रोट्रैक्टर्स जो हैं मतलब अगर वो बुक्स लेना चाहें, इवन दो ही आस्क्ड के फ्रॉम कराची टू इफ देयर इज अ सेंटर। जी, हैदराबाद में अब्दुल्ला मॉल है। अब्दुल्ला मॉल आप लोग ने जानते होंगे जो हैदराबाद में, आई एम श्योर अवेयर, जो मेन सुपर हाईवे पे, दैट इज परहैप्स द ओनली मॉल देयर। इकबाल कुरैशी साहब का अपना वो है प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर उन्होंने इसको एक सेंटर बनाया है बुक्स के हवाले से। आप वहाँ जाएं और इसमें जो है वो आपके जो पेरेंट रोटरी क्लब्स हैं वो कनेक्ट कर दें। इमरान है जो काफ़ी मेजर हमारे वहाँ पर एक्टिव रोटेरियंस में से भी हैं और ये बुक्स वगैरह के को भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर लें, या आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसमें। और वहाँ पर हमारे रेगुलरली बुक्स अवेलेबल होती हैं, कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं बुक्स के, सो यू कैन गेट देम। और कराची से अगर आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सर एक और क्वेश्चन है। यस सर। सर हमारे एक रोट्रैक्टर हैं, रोट्रैक्टर नादिल जतोई, उनका एक सवाल है कि अगर हम रोट्रैक्टर्स अगर चाहें कि हम मतलब एक लाइब्रेरी को ऑफिशियली, मतलब जिस तरह वैसे दूसरी लाइब्रेरीज भी होती हैं, वी कैन अपडेट अवर लाइब्रेरी इन हैदराबाद टू। सर हम लोग चाहते हैं कि हम क्यों ना इसको इस तरह रखें कि हम रोट्रैक को एक हैदराबाद में इस तरह इंप्रेशन बनाएं कि हम उसकी लाइब्रेरी को फंक्शनल कर दें कि रोट्रैक्टर्स या एक्सेप्ट रोट्रैक्टर्स भी आके उसमें मतलब वो लाइब्रेरी को यूटिलाइज कर सकें। तो सर इस तरह की कोई एक्टिविटी हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जो कमिश्नर हैदराबाद है, यू नो ही इज़ अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब ऑफ कासमाबाद, और उनकी कई दफ़ा हमें ऑफर्स आई हैं लाइब्रेरी के हवाले से कि वहाँ पर यू नीड सपोर्ट फ्रॉम अस। अगर आपके रोट्रैक्टर्स हैं, कुछ करना चाहते हैं, येस सर्टेनली वी कैन हेल्प यू आउट एंड प्लीज़ गो अहेड एंड एस्टेब्लिश लाइब्रेरीज। आप पार्क्स में या जो करंटली कुछ लाइब्रेरीज चल रही हैं उनको मज़ीद सपोर्ट करें। और बल्कि एक दो तो काफ़ी अच्छी जगहें उन्होंने भी बताई हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन कनेक्ट यू टू देम एंड वी कैन टेक द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सर आई होप कि मतलब वैसे आपके गिवन टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, बट सर इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रोट्रैक्टर्स आप लोगों से सीखें और आपके एक्सपीरियंसेस से सीखें। सर थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट IPDRR राना असद फॉर वोट ऑफ थैंक्स, बिकॉज ये सारी मेहनत उनकी है जो मतलब उन्होंने इतना हमें हेल्प किया इसके लिए। दिलावर माइक अनम्यूट करें राना का। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। First of all,
मैं सर पीडी फैज के भाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट की 3271 की तरफ से कि उन्होंने हमें टाइम दिया और अपने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छी गाइडलाइन से हमारे रोहतकर्स को मोटिवेट किया। थैंक यू सर फ्रॉम होल डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ ही मैं आज के जो हमें ज्वाइन किया DGND तहजीब काजमी साहब, PDRR जलील मलिक, PDRR काशिफ, IPDRR तला मुश्ताक, PDRR असफुल्लाह हुनैन, DRR उस्मान, DRR इकरा और स्पेशली सारे रोड एक्टर्स का जिन्होंने अपना टाइम निकाला इसमें। इसके साथ ही सर मैं आपको बताता चलूँ, ऐड ऑन करूँगा थोड़ी सी चीज़ों में कि हमारे रोड एक्टर्स माशाल्लाह आपकी गाइडलाइन के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हम यहाँ थैंकफुल और शुक्र अदा करना चाहेंगे आपका और तहजीब काजमी साहब का कि कोविड-19 के हालात में आप लोगों ने रोटेक्टर्स को फ्रंट फेस बनाया और मौका दिया कि हम रोड के साथ शाना बशाना होकर काम कर सकें। ख़ास तौर पे जो ग्रांट्स आई थी उसके अंदर हमने जो कोऑर्डिनेटर्स आपने रोट्रैक को मौका दिया कि पीपीएस उसके अलावा राशन बैग्स में जो हेल्प आउट कर सकें। इसका बेनिफिट्स हमें रोट्रैक्टर्स को रोटेरियंस के साथ काम करने का जो एक बहुत बड़ा गैप हमेशा हम रोट्रैक फील करते थे कि हमें रोटेरियंस के दरमियान में यानी सपोर्ट नहीं मिलती, वो एक कम्युनिकेशन गैप रोटरी बिटवीन रोटेक्टर्स बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इसी तरीके की मिसाल है कि इस वक्त हमारे रोटेरियंस कराची के रोटेरियंस और रोटेक्टर्स मिलकर डेली बेसिस पे हमारी पीपीएस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की जॉइंट एफर्ट्स की वजह से और इसके साथ ही हमारा पब्लिक इमेज बिल्डअप हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारे रोटेक्टर्स भी और रोटेरियंस भी उनसे मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप दोनों की काविशों का नतीजा है। और इसके अलावा हमारे पर्सनल रोटेक्टर्स भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह हम पब्लिश करेंगे आप लोगों को एक रिपोर्ट कि हमारे अपने पर्सनल रोटेक्टर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे रोटेक क्लब्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राशन ड्राइव्स के हवाले से। इसी तरीके से हमारे जो वहाँ से हैं 3272 के रोटेक क्लब्स भी इसी कोविड-19 के हवाले से बहुत काम अदा कर रहे हैं। यहाँ मैं लास्ट में थैंक उसका एसन को कांग्रेचुलेशन कहूँगा। आज का Thank you, sir. सक्सेसफुल सेशन ऑर्गेनाइज कर एक बहुत अच्छा इसने सेशन ऑर्गेनाइज किया और सीरीज ऑफ सेशंस नेक्स्ट हमारे अगले भी ऐसे सेशंस चलते रहेंगे जिसमें तला हैं, डिफरेंट DRRs हैं। आप सब उसमें सेशन अटेंड कर सकते हैं। और इसमें मैं सर आपको अगेन सर फैज साहब और थैंक यू करता हूँ। थैंक यू। कुरैशी साहब भी आए हुए हैं, इनको भी तो आप वेलकम करें। सर मैं भी सलाम करूं चुप करके कि खाम खा के अंदर जो है ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कहा कि सुना ही नहीं, हमें बताया तो नहीं किसी ने, लेकिन मैंने कहा सलाम करूं। बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं तमाम रोट्रैक्टर्स से मैं सिर्फ इतना कहूंगा। सर इकबाल बोल रहे हैं आप। अच्छा जी सर इकबाल जी बोले। आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ आप तमाम रोटेक्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर रोटरी में पाकिस्तान के अंदर रोटरी अगर जिंदा है तो एक रोटेक्टर की वजह से जिंदा है। और वो रोटेक्टर कौन है? वो वाहिद रोटेक्टर जो है वो है फैज अहमद किदवाई साहब, मोहम्मद फैज किदवाई साहब, सॉरी। अब इनका एक किस्सा सुना होगा आप लोगों ने कि ब्रिटिश एयरवेज का एक जहाज पे जा रहे थे और वो जहाज अगवा हो गया था और वहां जाके इन्होंने वो जो कारनामा किया था ना, वो लोगों को आज तक याद है कि वो क्या काम हुआ था। तो मैं अक्सर जो एक शायरी करता हूँ ना कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। कुछ दिन गुजर गए मेरे, तो मुझे मोहब्बत हो गई इनसे। तो मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो ये उनकी यादें हैं जो आज रोटरी को, रोटेक्टर्स को जिस तरह से लेके चल रही हैं और जितना दिल से ये काम करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मुझे फिर ये ख्याल होता है कि काश कोई ऐसा, ये जो एज फैक्टर का सिलसिला खत्म हो, मैं रोटरी छोड़ के रोटेक्टर्स ज्वाइन कर लूं तो कितना अच्छा है। दिस इज व्हाट आई रियली फील अबाउट हिम। और बिकॉज कमिंग टाइम जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में, अगर मैंने इंटरनेशनल जितनी भी ट्रैवलिंग की है और जितनी दुनिया में गया हूँ, तो अगर मुझे फ्यूचर नजर आता है तो अपने रोटेरियंस में नहीं, अपने इन रोटेक्टर्स बच्चों में नजर आता है कि ये वाकई दे आर समथिंग फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट जिसे कहते हैं ना,
वो रोटेरियंस है। और यही एक स्पिरिट है जिसने लूडो खेल दो ना, लूडो खेल। Thank you, Sir PDG Iqbal Qureshi Saab, for wonderful remarks, and thank you, Sir Faiz. भाई जी आगे सर, राना जी जी सर। सर इकबाल, आपको हम वेलकम करते हैं, और बल्कि आपने बात की मोहब्बत आपको तो होगी, हम रोटेक्टर्स को भी सर मोहब्बत होगी है फैज साहब से। आप देख सकते हैं आज 85 रोटेक्टर्स ना कि सिर्फ से 3272 से, बल्कि फैज साहब की मोहब्बत इतनी हो गई कि इंटरनेशनल रोटेक्टर्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहेगी। और इसके साथ ही सर इकबाल साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं। आपकी वजह से भी रोट्रैक, और जो आपने बोला कि फैज साहब रोटेक्टर है, हम कहते हैं आप भी हमारे रोटेक्टर हैं। हम तो आपको अपना ऑनरी मेंबर कहते हैं कि रोट्रैक के। इकबाल और साहब हमारे मैं honorary एक बात मैं बताऊं कि मेरे अंदर जो अगर एनर्जी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इकबाल कुरैशी साहब का, क्योंकि होता है ना, एक टीम वर्क होता है, इंडिविजुअली यू आर नथिंग। तो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन पीडीजी इकबाल कुरैशी साहब का है, जितने भी काम हमने किए उसमें। So, sir, सबसे पहले, चले। in the end, I would like to thank all the rotractors. Sir Iqbal Qureshi, Sir Faiz, I would like to thank you, and I would also like to thank PDR Dean Malik Saab from District 3272. Sir, I was very hopeful कि आप जरूर आएंगे हमारे सेशन में, and I have heard you a lot in different sessions, PDGs, and Rana, and everyone for joining this session. Thank you everyone, and I am hopeful कि आप लोगों ने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा. Thank you everyone. Thank you. Thank you for joining us. Thank you for inviting. Thank you.